اتنی تپتی گرمی میں وہ گھر داخل ہوئی تو پسینے میں شرابور تھی۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، دے دیں گے کرایہ، نہ دے سکے تو آ کے اسے لے جانا، یہ تیری ہوئی، مومانی نے بے لچک لہجے میں کہتے مشل کو مالک مکان کے آگے دھکا دے دیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد مشل کو تایا نے گھر سے نکال دیا تو مومانی نے احسان کر کے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ روز روز کے تانوں سے تنگ آ کے وہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتی، پر آج اس کی مومانی نے حد ہی کر دی۔ ہاں اگر تم اس لڑکی کو مجھے دے دو تو سارا کرایہ معاف کر دوں گا، مالک مکان خباثت سے بولا۔ چلو بلاؤ نکاح خواں کو۔ وہ 55 سال کی عمر کا خرانٹ شخص اس نازک لڑکی کو اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ یہ میری منقوہ ہے۔ اچانک ہی ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص اندر داخل ہوتا دھاڑا کہ جون کی وہ تپتی جھلساتی دوپہر مشل کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان بن کر نازل ہوئی تھی۔ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی اور سڑک سے اٹھتی ہوئی گرم ہوا کے تھپیڑے اس کے معصوم چہرے کو بری طرح جھلسا رہے تھے۔ وہ صبح سے بھوکے پیٹ اکیلی اس بے رحم شہر کی سڑکوں پر صرف ایک نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، لیکن ہر جگہ اسے صرف مایوسی اور سرد رویہ ہی ملا تھا۔ اس کے پاؤں کے چھالے اب پھٹنے کے قریب تھے اور دوپٹے کا پلو پسینے سے پوری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہامتی کامتی ہوئی اپنی مومانی کے گھر کے تنگ و تاریک صحن میں داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود نہ ڈھال تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے تپتی دھوپ سے نجات مل گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے اندر اس کے لیے جو آگ سلجھائی جا چکی تھی وہ باہر کی دھوپ سے کہیں زیادہ ہولناک اور جلا دینے والی تھی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں مومانی کی کرخت اور اونچی آواز گونجی جو کسی تیز خنجر کی طرح اس کے دل کے پار ہو گئی۔ مومانی لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھی پان چبا رہی تھی اور ان کے سامنے 55 سال کا وہ خرانٹ بدصورت اور عیاش مالک مکان بیٹھا تھا جس کی حریص نظریں مشل کو دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ مومانی نے مشل کی طرف ایک سرد اور بے لچک نظر ڈالی اور مالک مکان سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں ہاں جاؤ جاؤ، دے دیں گے کرایہ، اور اگر نہ دے سکے تو آ کے اسے لے جانا، یہ آج سے تیری ہوئی۔ مومانی کا یہ جملہ مشل کے سر پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تایا کے گھر سے نکالے جانے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ اس کی سگی مومانی اس کا سہارا بنے گی، لیکن یہاں تو اس کا سودا چند ہزار روپے کے کرائے کے عوض کیا جا رہا تھا۔ مشل نے روتے ہوئے مومانی کا دامن تھامنا چاہا، لیکن مومانی نے انتہائی بے رحمی سے اس نازک لڑکی کو مالک مکان کے آگے دھکا دے دیا۔ وہ 55 سال کا بوڑھا خباثت سے ہنسا اور اپنی پیلی رنگت والے دانت نکال کر بولا، چلو پھر دیر کس بات کی ہے، بلاؤ نکاح خواں کو۔ اگر تم یہ لڑکی مجھے دے دو تو پچھلا اور اگلا سارا کرایہ معاف کر دوں گا۔ مشل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تپتی دھوپ کی تھکن اور اس اچانک ملنے والے صدمے نے اس کے جسم کی سکت چھین لی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، اپنے مردہ ماں باپ کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نکاح خواں کو جیسے پہلی ہی بار بٹھایا گیا تھا، وہ فوراً اندر داخل ہوا اور کاغذات میز پر رکھ دیے۔ مالک مکان فاتحانہ انداز میں مشل کے قریب آیا اور اس کا کامتا ہوا ہاتھ زبردستی پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ مشل نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی تقدیر پر رونے لگی، لیکن ٹھیک اسی لمحے جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، باہر گلی میں تیز بریک لگنے کی خوفناک آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، گھر کا کمزور لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھولا، جیسے کسی نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھاڑ پھینکا ہو۔ صحن میں موجود ہر شخص اچھل پڑا۔ نکاح خواہ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا اور مومانی کی چیخ نکل گئی۔ دروازے کے وسط میں 6 فٹ کا ایک روبدار سوٹڈ بوٹی شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زیب تھا، جو 7 سمندر پار سے اپنی زندگی کو ڈھونڈتا ہوا ٹھیک اسی وقت پہنچا تھا جب اس کی کائنات لٹنے والی تھی۔ شاہ زیب نے ایک نظر اس خرانٹ بڈھے پر ڈالی جس کا ہاتھ مشل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ وہ ایک گرجدار اور خوفناک آواز کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس سے پورا مکان لرز اٹھا۔ رک جاؤ، اپنی گندی حدیں پار کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی میری منقوہ ہے۔ اس کی اس ایک دھار نے صحن میں موجود تمام لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔
मालिक मकान गुस्से और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ आगे बढ़ने लगा। तुम कौन हो मियाँ, और इस तरह किसी के घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शाहजेब ने एक सर्द और तज़हीक अमीज मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक तय किया हुआ कानूनी कागज निकाला। इसने वो कागज पूरी ताकत से इस बुड्ढे के मुंह पर मारा और कड़कदार लहजे में बोला, ये देखने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इस लड़की का निकाह 1 साल पहले मेरे साथ इसके ताया और इसके मरहूम वालिद ने खुद पढ़ाया था। ये कानूनन और शरन मेरी बीवी है, और जो शख्स मेरी बीवी पर बुरी नजर डालेगा मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। शाहजेब के गाज ने फौरन आगे बढ़कर माल के मकान और नाकाह ख्वां को दबोच लिया। मुमानिका तो जैसे सख्ता हो गया था, इसका पान इनके हलक में अटक गया और वो थर थर कांपने लगी। शाहजेब ने इन सबको नजरअंदाज किया और इसकी नजरें मिशल पर गईं, जो फर्श पर बैठी आंसू बहाती हुई इसे किसी फरिश्ते की तरह देख रही थी। शाहजेब ने आगे बढ़कर इंतहाई नरमी और मान के साथ मिशल का पसीने से शराबुर हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया। इसके लिम्स में एक ऐसी हिफाजत और तपिश थी जिसने मिशल के अंदर के सारे खौफ के एक पल को खत्म कर दिया। शाहजेब ने इसे सहारा देकर खड़ा किया और बगैर मोड़कर देखे इसे इस दलदल से निकालकर बाहर ले गया जहाँ इसकी चमकती हुई स्याह कार खड़ी थी। गाड़ी में बैठते मिशल सदमे और हैरत की मिली जुली कैफियत में शाहजेब को देखने लगी। वो शाहजेब को बचपन से जानती थी। वो इसका ताया ज़ाद था जिससे इसका निकाह हुआ था, लेकिन ताई ने इससे हमेशा यही बावर करवाया था कि शाहजेब इससे नफरत करता है और इसे छोड़कर जा चुका है। गाड़ी की ठंडी एसी की हवा ने मिशल के जिस्म को तो सुकून दिया, लेकिन इसका जहन अभी भी सवालों के भंवर में था। वो शाहजेब की तरफ मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, तुम इतने साल कहाँ थे शाहजेब? तुम्हारी माँ ने मुझे इस घर से धक्के देकर निकाला, मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए। तुमने एक बार भी मेरी खबर क्यों ना ली? शाहजेब ने गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इसके चेहरे के तासुरात नरम हुए और इसने मिशल की तरफ देखे बगैर कहा, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने झूठ बोला था मिशल। इन्होंने मुझे कहा था कि तुम किसी और की खातिर ये घर छोड़कर भाग गई हो, लेकिन मैं शाहजेब हूँ, मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। मैंने अपनी तहकीकात करवाई अपने ज़राए इस्तेमाल किए, और जब मुझे सच मालूम हुआ तो मैं इसी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारी तलाशी में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मिशेल ने हैरत से इसे देखा। इसके दिल में शाहजेब के लिए जो नफरत और गिला था वो इसके एक जुमले से पिघलने लगा। शाहजेब गाड़ी को ताई के घर ले जाने की बजाय शहर के एक इंतहाई पोश और शानदार इलाके की तरफ ले गया और एक बहुत बड़े आलीशान अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोक दी। मिशेल ने घबरा कर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका घर है? शाहजेब ने गाड़ी का इंजन बंद किया और मुस्कुरा कर बोला, ये मेरा अपार्टमेंट है मिशेल, और आज से ये तुम्हारा भी घर है। मेरी माँ के घर में तुम्हारे लिए सिर्फ तलखियाँ हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं ले जाऊँगा। यहाँ तुम महफूज हो। वो मिशेल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने खुद बाहर आया। जब वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए तो मिशेल इसकी खूबसूरती और सुकून देकर हैरान रह गई, लेकिन इसकी खुददारी अभी भी बेदार थी। वो सोफे पर बैठने की बजाय दूर खड़ी हो गई और रुख फेर कर बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं किसी के एहसान तले नहीं जीना चाहती। मैं कल ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। शाहजेब जो कोट उतारकर सोफे पर फेंक चुका था, मिशेल की ये बात सुनकर इसके बिल्कुल करीब आया। इनके दरमियान फासला इतना कम था कि मिशेल को शाहजेब की सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शाहजेब ने इसकी आंखों में आंखें डाली और धीमे लहजे में, तहमकाना लहजे में बोला, नौकरी? और वो भी मेरे होते हुए? मिशेल बीबी, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो, और बीवी के नखरे उठाना शोहर का फर्ज होता है, एहसान नहीं। मिशेल ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करना चाहा, लेकिन शाहजेब ने नरमी से इसकी थोड़ी को छूकर अपनी तरफ किया। इनकी नजरें मिली तो मिशेल का दिल गोली की रफ्तार से धड़कने लगा। शाहजेब ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा, तुम तपती धूप में नौकरी ढूंढने निकली थी ना? अब जरा यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। और हाँ, इनकार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे शोहर का हुक्म तो नहीं, लेकिन आखिरी ज़रूर होता है। वो मिशेल को वहीं हैरान और परेशान छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गया। मिशेल सोफे पर बैठ गई और इसने अपने दिल पर हाथ रखा, जो इसने और नई खूबसूरत एहसास से बुरी तरह धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि जिंदगी की तपती धूप अब खत्म हो चुकी थी और इस पर मोहब्बत का एक ऐसा हिसार कायम हो चुका था जो इसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने के लिए काफी था, लेकिन शायद ये इसका वहम था। शाहजेब जब किचन से 2 चाय के मग उठाए बाहर आया
तो इसके लबों पर एक धीमी और फातिहाना मुस्कुराहट थी। मिशेल अभी तक सोफे के कोने में सिमटी अपने ही ख्यालात के ताने बाने बुन रही थी। तपती धूप का असर अभी एसी की ठंडक में काफी हद तक ज़ायल हो चुका था, लेकिन इसके मासूम चेहरे पर फैली परेशानी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। शाहजेब ने चाय का मग इसके सामने टेबल पर रखा और खुद इसके बिल्कुल सामने सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। चाय पी लो मिशेल, तुम्हारे दिमाग को इस वक्त इसकी सख्त जरूरत है। शाहजेब की गहरी और रौबदार आवाज पर मिशेल ने चौंक कर इसे देखा। इसने चाय के मग को हाथ तक न लगाया और अपनी खुददारी को बरकरार रखते हुए बोली, मुझे चाय नहीं पीनी और ना ही मुझे यहाँ रुकना है। शाहजेब, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ताई ने मुझे जिस इल्जाम के तहत घर से निकाला था, अगर दुनिया को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस तरह अकेली रह रही हूँ तो वो मुझे जीने नहीं देंगी। शाहजेब ने चाय का एक घूंट लिया और इसकी आंखें एकदम संजीदा हो गईं। वो सोफे से उठा और मिशेल के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। मिशेल ने घबराकर पीछे होना चाहा, लेकिन शाहजेब ने फिरती से इसका हाथ थाम लिया। इसके मजबूत लिम्स ने मिशेल के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी। शाहजेब ने इसकी आंखों में झांकते हुआ कहा, कौन सी दुनिया मिशेल? वो दुनिया जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें 55 साल के बुढ़े का हाथ बेच रही थी, या वो ताई जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम्हें दरबदर किया? तुम कोई गुनाह नहीं कर रही। तुम कानूनन और शरन मेरी बीवी हो और अपनी बीवी को तहफ्फुज देना मेरा फर्ज है। इस दुनिया की इतनी जुर्रत नहीं कि अब मेरी मौजूदगी में तुम पर उंगली भी उठाए। शाहजेब का ये अंदाज इतना पुरकशिश और यकीन से भरा था कि मिशेल के पास कहने को कोई लफ्ज नहीं बचा। वो बस मबहूस सी इसे देखती रह गई। शाहजेब ने शरारत से इसके गाल को अपनी उंगली से छुआ और बोला, और हाँ, अगर तुमने अब ये चाय खुद ना पी तो मुझे अपने हाथों से पिलाने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह आता है। मिशेल का चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले एहसास से सुर्ख हो गया। इसे जल्दी से मग उठाया और चाय पीने लगी। शाहजेब इसके मासूम अंदाज पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। इसे लगा हालात जितने भी तलख रहे हों, लेकिन मिशेल की वो मासूमियत आज भी बरकरार थी जिससे वो मोहब्बत करता था। अगला पूरा दिन मिशेल के लिए किसी ख्वाब जैसा था। शाहजेब ने इसके लिए शहर के सबसे महंगे ब्रांड से कपड़े और जरूरत का तमाम सामान मंगवाया। वो खुद किचन में जाकर इसके पसंद के खाने बनाता। कभी नमक तेज कर देता तो मिशेल इसे छेड़ती और दोनों के दरमियान खूबसूरत और रोमानवी नोक झोंक का एक सिलसिला चल निकलता। मिशेल आहिस्ता आहिस्ता इस नए माहौल में खुद को महफूज महसूस करने लगी थी और इसके दिल में शाहजेब के लिए मोहब्बत के दिए जलने लगे थे। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि इस पुरसुकून महल के बाहर इसकी जिंदगी को दोबारा जहन्नुम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बना जा चुका था। दूसरी तरफ मोमानी और वो खरांट मालिक मकान शाहजेब के हाथों पहुंचने वाली जिल्लत को भूले नहीं थी। मोमानी ने फौरन शाहजेब की माँ यानी ताई से राब्ता किया और इन्हें भड़काते हुए बोली, बाजी, आपका बेटा तो इस बदचलन लड़की के इश्क में अंधा हो चुका है। वो इसे उठाकर किसी खुफिया अपार्टमेंट में ले गया है और वहाँ दोनों ऐश कर रहे हैं। अगर आपने अभी कुछ ना किया तो शाहजेब हाथ से निकल जाएगा और वह जायदाद भी मिशेल के नाम कर देगा। ताई जो पहले ही मिशेल से शदीद नफरत करती थी और शाहजेब की जायदाद पर अपना हक समझती थी, मोमानी की यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गईं। इन्होंने मालिक मकान और मोमानी के साथ मिलकर ऐसा घनाना मंसूबा तैयार किया जिससे शाहजेब का गरूर भी खाक में मिल जाए और मिशेल हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। इधर अपार्टमेंट में रात का वक्त था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और मौसम इंतहाई रोमानवी हो गया था। शाहजेब और मिशेल लाउंज में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे और मिशेल हंस हंस कर अपने बचपन के किस्से सुना रही थी। शाहजेब इसे इतने दिनों बाद खिलखिलाकर हंसता देखकर अपनी तमाम दुनिया भुला चुका था। लेकिन ठीक इसी पुरसुकून लम्हे में अपार्टमेंट के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाने लगा। दस्तक इतनी शदीद थी जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। मिशेल का हंसता हुआ चेहरा एकदम जर्द पड़ गया और वह डरकर शाहजेब के पीछे छुप गई। शाहजेब के माथे पर बल पड़ गए। इसने मिशेल को दिलासा दिया, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। शाहजेब ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर इसके भी होश उड़ गए। बाहर 4 पुलिस वाले खड़े थे और उनके पीछे ताई, मोमानी और वह खरांट मालिक के मकान फतहमंदाना मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। ताई ने अंदर दाखिल होते ही मिशेल पर नजर डाली और चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैंने कहा था ना, इस सवार और बदचलन लड़की ने मेरे मासूम बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और ये मकार औरत यहाँ पे मेरे बेटे के पैसे पर ऐश कर रही है। मोमानी ने भी आगे बढ़कर झूठ का तड़का लगाया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मेरी भांजी है। इस अमीर लड़की ने मेरी मासूम बच्ची को जबरदस्ती अगवा किया और यहाँ कैद करके रखा है। इसे फौरन गिरफ्तार करें। पुलिस अफसर ने शाहजेब की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, मिस्टर शाहजेब, आप पर एक लड़की के अगवा का करने और गैर कानूनी तौर पर कैद रखने का इल्जाम है। हमें इस जगह की तलाशी लेनी होगी और आपको हमारे साथ थाने चलना होगा।
मिशेल ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। इसे लगा एक बार फिर इसकी तकदीर ने इसे इस तपती धूप में ला खड़ा किया जहाँ रुसवाई के सिवा कुछ नहीं था। वो डर रही थी कि शाहजेब अपनी माँ के सामने झुक जाएगा और पुलिस के डर से इसे छोड़ देगा। ताई और मुमानी के चेहरे पर एक कमीनी खुशी थी कि इनका वार खाली नहीं गया, लेकिन वो ये भूल चुके थे कि वो किसके सामने खड़े हैं। शाहजेब के चेहरे पर खौफ का एक साया तक न आया, बल्कि इसकी आंखों में एक ऐसी सर्द लहर दौड़ गई जिसने सामने खड़े इंस्पेक्टर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शाहजेब ने एक गहरा सांस लिया और अपने मोबाइल फोन पर एक बटन दबाया। इसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, इंतहाई पुरसुकून लेकिन दिलफरेब लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब, कानून अंधा हो सकता है लेकिन शाहजेब नहीं। आप जिस अगवा और बदचलनी का केस सुनाने यहाँ आए हैं, जरा एक मिनट रुक कर ये वीडियो देख लें, शायद आपकी नौकरी बच जाए। शाहजेब ने मोबाइल की स्क्रीन इंस्पेक्टर के सामने कर दी। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। इसे देखकर ताई के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और मुमानी के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कोई आम वीडियो नहीं थी, बल्कि ये इस वक्त की खुफिया रिकॉर्डिंग थी जब मुमानी इस तपती दोपहर को माल के मकान किराए के मिशेल को सौदा कर रही थी और निकाह ख्वाह को रिश्वत दी जा रही थी। शाहजेब ने अपने कागज के जरिए वो पूरा सीन रिकॉर्ड करवा लिया था। शाहजेब की इस चाह ने एक ही पल में पूरी बाजी पलट कर रख दी और अब वो शिकारी खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर चलती इस वीडियो ने अपार्टमेंट के नाच में जैसे गहरा सकता तारी कर दिया। इंस्पेक्टर की नजर स्क्रीन पर जमी हुई थी जब मिशेल की मुमानी साफ अल्फाज में माल के मकान से कह रही थी कि किराया माफ करो, लड़की को ले जाओ। मुमानी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और इनका पूरा वजूद पसीने से नहा चुका था। ताई ने जब ये वीडियो देखी तो इनके पैरों तले से भी जमीन निकल गई। वो तो मिशेल को बदचलन साबित करने आई थी, लेकिन यहाँ तो खुद इनकी समतन एक घनावने सौदे में रंगे हाथ तो पकड़ी जा चुकी थी। शाहजेब ने मोबाइल जेब में डाला, अपने कोट के बटन दुरुस्त किए और इंस्पेक्टर के करीब आकर इंतहाई सर्द और कड़कदार लहजे में बोला, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अब बताइए अगवाकार कौन है? मैं अपनी शरई और कानूनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, या ये औरतें जो सरेआम एक मासूम लड़की का सौदा कर रही थी। ये वीडियो सबूत है कि मेरी सगी ताई और मुमानी ने मिलकर मेरी बीवी की जिंदगी को खतरे में डाला। अब अगर आपने इनको गिरफ्तार ना किया तो कल सुबह ये वीडियो आईजी पुलिस के टेबल पर होगी और साथ में आपकी मुअत्तली का आर्डर भी। शाहजेब की इस धमकी ने इंस्पेक्टर को 14 तबक रोशन कर दिए। वो फौरन पैंतरा बदलकर मुमानी और माल के मकान की तरफ मुड़ा और गुस्से से चाका, हथकड़ी निकालो, इन दोनों को अभी के अभी अंदर करो। तुम लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, चलो थाने। मुमानी ने रोते हुए ताई का दामन थामना चाहा। बाजी, खुदा के लिए मुझे बचाएं, मैं तो आपके कहने पर। इससे पहले कि मुमानी ताई का नाम लेती, ताई ने घबराकर इन्हें पीछा धक्का दिया और खुद को बचाने के लिए बोली, दूर हो जाओ मुझसे मकार औरत, मुझे क्या पता था तुम इतनी गिरी हुई हो। अच्छा हुआ शाहजेब ने तुम्हारी हकीकत सबके सामने ला खड़ी की। माल के मकान में मुमानी चीखते चलाते हुए पुलिस की हिरासत में बाहर ले जाए जा रहे थे। अब अपार्टमेंट में सिर्फ शाहजेब, मिशेल और ताई रह गए थे। ताई की नजर शाहजेब के जलाल से भरे चेहरे पर पड़ी तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई। शाहजेब मिशेल के पास आया, इसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और ताई की तरफ देखकर बोला, अम्मी मेरी माँ हैं आप, इसलिए मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करा, लेकिन याद रखिए मिशेल मेरी इज्जत है। अगर आज के बाद आपने या आपके किसी बंदे ने मिशेल की तरफ उठती हुई नज़र से भी देखा तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ताई ने शर्मिंदगी और गुस्से से मिशेल को घूरा, लेकिन शाहजेब के अज़्म के आगे वो कुछ ना बोल सकी और पैर पटकती हुई बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही मिशेल के जब्त का बंधन टूट गया और वो शाहजेब के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। शाहजेब ने इसे अपनी बाहों के सार में समेटा और इसके सर पर अपने लब रख दिए। भाई बारिश अब तेज हो चुकी थी और इस तूफान के बाद इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मान का एक नया समंदर मौजन हो चुका था। इस होलनाक रात के गुजरने के बाद अपार्टमेंट की फिजाओं में एक अजीब सा सुकून और अपनायत उतर आई। अगली सुबह जब मिशेल की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। जैसे लाउंज में आई तो सामने का मंजर देखकर इसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल उठी। शाहजेब किचन का अप्रैल पहने, हाथों में फ्राई पैन लिए, नाश्ता बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कहीं आमलेट जल रहा था तो कहीं टोस्ट स्याह हो रहा था। मिशेल धीमे कदमों से इसके पीछे आई और बोली, अगर बिजनेस टाइकून साहब की कुकिंग खत्म हो गई हो तो क्या ये किचन भी संभालूं? शाहजेब ने चौंक कर मुड़कर देखा और शरारत से मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, बेगम साहबा बेदार हो गई। मैं तो बस तुम्हारे लिए सरप्राइज नाश्ता तैयार कर रहा था, लेकिन लगता है ये अंडे मुझसे ज्यादा तुम्हारे इश्क में जल गए हैं। मिशेल इसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी की चंकार शाहजेब के दिल के तार छेड़ गई। मिशेल ने इसके हाथ से चम्मच लिया और खुद नाश्ता बनाने लगी। शाहजेब वहीं स्लैब से टेक लगाकर खड़ा इसे मोहब्बत से नहारने लगा। शाहजेब, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं तो एक मामूली सी हालात की सताई हुई लड़की हूँ। मिशेल ने पराठा पलटते हुए धीमी आवाज में पूछा। शाहजेब ने आगे बढ़कर
اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم معمولی نہیں ہو مشل، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں نے تپتی دھوپ میں بھی کھونے نہیں دیا۔ تمہاری خودداری اور تمہاری یہ معصومیت ہی میری کل کائنات ہے۔ ان رومانوی لمحات میں دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں صاف سن سکتے تھے، لیکن کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تائی گھر جا کر اس ذلت کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے دل میں مشل کے لیے نفرت کی آگ اب اور زیادہ بھڑک چکی تھی۔ انہوں نے اب ایک نیا اور آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شاہ زیب کے بزنس پارٹنر اور اس کے سب سے بڑے حریف کامران سے خفیہ ملاقات کی۔ کامران ہمیشہ سے شاہ زیب کو بزنس میں نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ تائی نے کامران سے کہا، اگر تم شاہ زیب کو برباد کرنا چاہتے ہو تو اس کی کمزوری مشل ہے، اسے نقصان پہنچاؤ، شاہ زیب خود ہی گھٹنوں کے بل آ جائے گا۔ کامران کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شاہ زیب کے اپارٹمنٹ کے باہر اپنے گنڈے کھڑے کر دیے، اور ایک شام جب شاہ زیب ایک اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، کامران کے آدمیوں نے اپارٹمنٹ کی بجلی کاٹ دی۔ مشل اندھیرے میں گھبرا گئی، اور جیسے ہی وہ موم بتی ڈھونڈنے لگی، اپارٹمنٹ کا مرکزی دروازہ کسی نے ماسٹر کی سے کھولا اور چند سائے اندر داخل ہوئے۔ مشل نے خوف سے چیخ مارنا چاہی، لیکن ایک بھاری ہاتھ نے اس کا منہ تو پوچھ لیا۔ کامران اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا اور بولا، تو یہ ہے شاہ زیب کی جان، چلو لڑکی، اب تمہارے ذریعے تمہارے شوہر کا غرور خاک میں ملائیں گے۔ وہ مشل کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ مشل بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن اس بار بھی ولن یہ بھول چکے تھے کہ شاہ زیب نے مشل کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اپارٹمنٹ کے لوبی سے باہر نکلے، اچانک چاروں طرف سے تیز اسپاٹ لائٹس آن ہو گئیں اور کامران کے گنڈوں کو گھیر لیا گیا۔ سامنے شاہ زیب اپنی چمکتی بلیک کار کے بونٹ پر ٹیک لگائے ہاتھ میں سگار لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں، بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کامران، تم نے کیا سوچا تھا؟ میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا؟ میں تو صرف تمہیں اس چوہے دان میں پھنسانے کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ زیب کی آواز گونجی تو کامران کے ہوش اڑ گئے۔ کامران نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں شاہ زیب کے مسلح گاز نے اسے اور اس کے گنڈوں کو بندوقوں کے نشانے پر لے رکھا تھا۔ لابی کی تیز لائٹس میں کامران کا چہرہ خوف اور ذلت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ شاہ زیب نے سگار کا ایک لمبا کش لیا، دھواں فضا میں اچھالا اور دھیمے لیکن انتہائی شفاف قدم اٹھاتا ہوا کامران کے قریب آیا۔ مشل جب تک کامران کے گنڈوں کی گرفت میں تھی، شاہ زیب کو دیکھتے ہی اپنی پوری طاقت سے ان کی گرفت سے آزاد ہوئی اور بھاگ کر شاہ زیب کے پیچھے جا چھپی۔ شاہ زیب نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے مشل کو اپنے مضبوط وجود کے حصار میں لیا اور اس کی نظریں کامران کے چہرے پر گڑ گئیں۔ کامران، بزنس میں مقابلہ کرنا تھا تو میرے شیئرز خریدتے، میرے ڈیلز خراب کرتے، لیکن تم نے میری زندگی، میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کی۔ شاہ زیب کی آواز کی سردی لابی میں موجود ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ کامران نے اپنے مکے بھینچے اور غصے سے چہکا، شاہ زیب تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، یہ لڑکی تمہاری کمزوری ہے اور میں تمہاری یہ کمزوری تم سے چھین کر رہوں گا۔ شاہ زیب نے ایک زوردار کہکا لگایا جو اس سنسان لوبی میں گونج اٹھا۔ اسے سگار نیچے پھینکا اور اپنے بوٹ تلے سے مسلتے ہوئے بولا، تم غلط فہمی میں ہو کامران، مشل میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، اور جو میری طاقت پر وار کرتا ہے میں اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیتا ہوں۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور لوبی کے دوسرے کونے سے پولیس کی ایک پوری ٹیم انسپیکٹر کی قیادت میں اندر داخل ہوئی۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر کامران کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ کامران نے دل ملا کر کہا، شاہ زیب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پولیس کس بنا پر مجھے گرفتار کر رہی ہے؟ شاہ زیب نے اپنی جیب سے ایک آڈیو ریکارڈ نکالا اور اسے پلے کر دیا۔ اس ریکارڈ سے تائی کو کامران کی وہ تمام گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی جس میں تائی نے کامران کو مشل کو اغوا کرنے اور شاہ زیب کو برباد کرنے کا لالچ دیا۔ شاہ زیب نے مسکرا کر کامران کی آنکھوں میں دیکھا، تم دونوں کی یہ ملاقات میرے ہی ایک آدمی نے ریکارڈ کروائی تھی۔ تم ہاؤس ٹریس پاسنگ، اغوا کی کوشش اور بلیک میلنگ کے جرم میں اگلے 10 سال کے لیے جیل جا رہے ہو کامران۔ لے جاؤ اسے، کامران چیختا ہوا پولیس کی گاڑی کی طرف دھکیلا گیا۔ جب لوبی خالی ہوئی تو شاہ زیب مڑا اور اس نے مشل کے دونوں کندھوں کو تھام لیا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگایا، سب ختم ہو گیا مشل، میں نے کہا تھا نا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ مشل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب تائی کا آخری وار بھی ناکام ہو چکا تھا اور ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن کی صبح تائی کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی۔ شاہ زیب اپنی ماں کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بلیک فائلر تھا۔ تائی لاؤنج میں پریشان حال ٹہل رہی تھی۔ کامران کی گرفتاری کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور وہ جانتی تھی اب شاہ زیب ان کو معاف نہیں کرے گا۔ شاہ زیب نے وہ فائل میز پر پٹکا جس کی آواز سے تائی اچھل پڑی۔ شاہ زیب یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنی ماں کے سامنے اس طرح آتے ہیں؟ تائی نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اونچی آواز میں بولنا چاہا۔ شاہ زیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں کی سرد نظروں سے دیکھا۔ ماں، کیا مائیں
अपने ही बेटों के घर उजाड़ने के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाती हैं। अम्मी, आपने जायदाद के लालच में मिशेल को इस तपती धूप में दरबदर किया, मुझे झूठ बोला और जब मैं इसे वापस ले आया तो आपने मेरे ही बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर इसे अगवा करवाने की साजिश की। ताई का रंग सफ़ेद पड़ गया और वो कुछ कहने के लिए अपने लब हिलाने लगी, लेकिन शाहजेब ने इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। इसने मेज़ पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया। इस फाइल में इस जायदाद के पेपर्स हैं जो दादा अब्बू ने मेरे नाम की थी। मैंने इस जायदाद का 70% हिस्सा मिशेल के नाम ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी 30% इस बंगले समेत आपके पास रहेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद आपका मेरे मिशेल के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं ये शहर और मुल्क छोड़कर मिशेल के साथ हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जहाँ आपकी नफरत का साया भी हम तक ना पहुँच सके। ताई सुनकर सोफे पर ढेर हो गई। इनका लालच इनके सामने था, लेकिन इनका इकलौता बेटा इनसे हमेशा के लिए दूर जा रहा था। शाहजेब बगैर मुड़े इस घर से बाहर निकल गया जहाँ इसका माजी दफन हो चुका था। वो सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंचा जहाँ मिशेल इसका इंतजार कर रही थी। शाहजेब ने अंदर दाखिल होकर मिशेल को देखा जो खिड़की के पास खड़ी थी। अब मौसम बिल्कुल बदल चुका था। आसमान पर काले बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी। शाहजेब इसके पीछे आया और अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द बांधते हुए अपना चेहरा इसके कंधे पर रख दिया। मिशेल ने अपने हाथ इसके हाथों पर रखे और धीमी आवाज में पूछा, क्या सब ठीक हो गया शाहजेब? शाहजेब ने इसके गाल पर अपने लब रखे और बोला, हाँ मिशेल, अब सब ठीक हो गया है। अब हमारे दरमियान ना कोई तपती धूप है और ना ही कोई नफरत का साया। कल हमारी फ्लाइट है, हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम होगे। मिशेल ने मुड़कर शाहजेब की आंखों में देखा जिनमें इसके लिए बेपनाह मोहब्बत और मान था। इसने शाहजेब के सीने पर अपना सर रख दिया और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टपकने लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे मिशेल का दिल मुसलसल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। वो बार बार अपने हाथ में पकड़े पासपोर्ट और बोर्डिंग पास को देखती और फिर अपने बराबर में बैठे शाहजेब को, जो बहुत सुकून से अपने लैपटॉप पर कुछ बिजनेस ईमेल चेक कर रहा था। इस नए मुल्क, नई जिंदगी और इतने बड़े बदलाव का ख्याल ही मिशेल के जहन में एक अजीब सी हलचल मचा रहा था। शाहजेब ने शायद इसकी बेचैनी को महसूस कर लिया। इसने लैपटॉप बंद किया और मिशेल को ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर दबाया। क्या हुआ मिशेल, तुम अब भी परेशान हो? सब कुछ पीछे छूट चुका, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिशेल ने गहरा सांस लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में झलकते खौफ के साथ बोली, मैं डर नहीं रही शाहजेब, बस यकीन नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तक मैं सड़कों पर एक लुक में और नौकरी के लिए भटक रही थी और आज मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। मुझे लगता है कहीं ये कोई ख्वाब ना हो और मेरी आंख खुले तो मैं फिर इसी तपती धूप में खड़ी हूँ। शाहजेब के चेहरे पर एक गहरा और दिल पिघला देने वाला तासुर उभरा और इसके मजीद करीब हुआ और इसके कांपते लबों के पास माइल होकर धीमे लहजे में बोला, अगर ये ख्वाब है मिशेल तो मैं तुम्हें कभी जागने नहीं दूंगा और अगर तुम फिर भी डरोगी तो मैं हर बार तुम्हें अपनी बाहों में भेजकर ये यकीन दिलाऊंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ठीक इसी वक्त फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ और शाहजेब इसका हाथ हमें तैयारे की तरफ बढ़ गया। 9 घंटे का तवील सफ़र तय करने के बाद जब वह लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ का मौसम पाकिस्तान के मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ हल्की धुंध और सर्द हवा का राज था। शाहजेब ने गाड़ी पहले से ही बुक कर रखी थी। वो मिशेल को लेकर शहर के एक पुरसुकून और इंतहाई खूबसूरत मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े अपने ज़ाती कॉटेज पर पहुंचा। ये घर लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ एक क्लासिक शाहकार था जिसके इर्द गिर्द सब्ज़ा और रंग बिरंगे फूल खिले थे। मिशेल ने जैसे ही इस घर में कदम रखा इसे एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन जैसे वो लाउंज में पहुंची इसने देखा कि वहाँ की एक दीवार पर इसकी और शाहजेब के बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो दोनों हंस रहे थे। मिशेल ने हैरत से शाहजेब को देखा। ये तस्वीर यहाँ कैसे? शाहजेब पीछे से आया और इसके कंधों पर एक गर्म शाल डालते हुए बोला, मैंने कहा था ना मिशेल, मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। कॉटेज में मैंने 2 साल पहले खरीदा था और इसी उम्मीद पर सजाया था कि एक दिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ आऊँगा। मिशेल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसके मान के थे जो शाहजेब ने इससे दिया था। वह मुड़ी और शाहजेब के गले लग गई। इस नए मुल्क की सर्द रात इनकी मोहब्बत की गर्मजोशी में पिघलने लगी थी। लंदन में गुजरते दिन मिशेल की जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। शाहजेब ने अपने बिजनेस का ज़्यादातर काम ऑनलाइन संभाल लिया ताकि वो अपना पूरा वक्त मिशेल को दे सके। रोज़ सुबह शाम शाहजेब इसके लिए काफ़ी बनाता और दोनों कॉटेज के छोटे से बागीचे में बैठकर घंटों बातें करते। मिशेल जो कभी बात करते हुए झिझकती थी अब शाहजेब के सामने अपने दिल की हर बात बिला झिझक कह देती। एक शाम जब हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी शाहजेब मिशेल को लंदन के एक मशहूर और आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। मिशेल ने इसके दबे दिए हुए ब्रांडेड लिबास हल्के मेकअप में गजब का रूप धार रखा था। रेस्टोरेंट की धीमी लाइट्स और रोमानवी म्यूजिक में शाहजेब की नज़रें मिशेल के चेहरे से हटी नहीं रही थी। शाहजेब, ऐसे मत देखो, लोग क्या सोचेंगे? मिशेल ने
शर्माते हुए अपना चेहरा झुकाया। शाहजेब ने टेबल पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसकी उंगलियों को छुआ और गहरी आवाज में कहा, लोगों की परवाह मैंने कभी नहीं की मिशेल, और अब तो तुम मेरी ऑफिशियल बेगम हो। मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी कायनात को जितना चाहूँ निहारूं। डिनर के बाद जब वो वापस कॉटेज लौटे तो माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। शाहजेब ने लाउंज में फायर पैलेस को जलाया, जिससे पूरे कमरे में एक सुनहरी और गर्म रोशनी फैल गई। मिशेल सोफे पर बैठकर खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को देख रही थी। शाहजेब इसके बराबर में आकर बैठा और इसके हाथ में गर्म चॉकलेट का मग थमा दिया। मिशेल ने शाहजेब के शाने पर अपना सर रख दिया। शाहजेब, जिंदगी कितनी अजीब है ना। जो ताइद और मोमानी मुझे एक बोझ समझती थी, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना दिया। शाहजेब ने इसके माथे पर अपने लब रखे और इसके बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए बोला, वो लोग अंधे थे मिशेल, जो हीरे की कदर नहीं जानते थे। इन्होंने तुम्हें तपती धूप में छोड़ा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारी तकदीर में मेरे प्यार का ये ठंडा और मजबूत हसार लिखा जा चुका था। मिशेल ने अपने हाथ शाहजेब के गिर्द फैला दिया और इसकी मौजूदगी की खुशबू में खुद को गुम कर दिया। फायर पैलेस की लकड़ियों के चटकने की धीमी आवाज़, बाहर गिरती बर्फ के दरमियान इनका यह सफ़र अपनी मुकम्मल रोमानवी चुका था, जहां अब ना कोई खौफ था, ना कोई साजिश और ना ही माजी का कोई तारीख साया। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, और ऐसी मोहब्बत थी जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। लंदन की इस खूबसूरत वादी में वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा था। मिशेल की ज़िंदगी से माजी की तलखियाँ इस तरह गायब हो चुकी थी जैसे कभी इनका वजूद ही ना रहा हो। वो सहमी हुई हालात की सताई हुई लड़की नहीं रही थी, बल्कि शाहजेब की बेपनाह प्यार और माँ ने इसके अंदर एक नया एतमाद पैदा कर दिया था। एक शौक और चुलबुली मिशेल अब अक्सर शाहजेब को अपनी बातों से लाजवाब करती। एक सुबह जब शाहजेब अपने मुताले कमरे में बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था, मिशेल हाथ में काफ़ी का मग लिए दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। इसने पीछे से आकर शाहजेब की आंखों पर अपने नरम और ठंडे हाथ रख दिए। शाहजेब के लबों पर फौरन एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने मिशेल के नाजुक हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा और इसे घुमाकर अपने सामने ला खड़ा किया। तो बेगम साहब आज फिर किसी शरारत के मूड में है। शाहजेब ने इसे कमर से थामते हुए गहरी नजरों से देखा। मिशेल ने मसनूई नाराजगी से अपने अबरू चुकाए और बोली, शरारत कैसी, मैं तो बस अपने मसरूफ शोहर को ये याद दिलाने आई हूँ कि बाहर मौसम कितना हसीन हो रहा है और कोई मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का वादा करके भूल चुका। शाहजेब ने अपनी घड़ी देखी, फिर मिशेल को चमकते हुए चेहरे को। शाहजेब अपने बिजनेस की डील्स भूल सकता है मिशेल, लेकिन अपनी बीवी से किया हुआ वादा नहीं। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम हाइड पार्क जा रहे हैं। मिशेल खुशी से उछल पड़ी और शाहजेब के गाल पर अपने लबों का लिम छोड़कर कमरे से भाग गई। शाहजेब देर तक इसके जाने वाले रास्ते को देखता रहा। इसके दिल में अज़म और पक्का हो गया था कि वो मिशेल के चेहरे से इस हंसी को कभी ओझल नहीं होने देगा। इस शाम वो दोनों लंदन की सड़कों पर थे। तेज हवा चल रही थी और सड़क के दोनों तरफ दरख्तों से सुर्ख और सुनहरी पत्ते गिर रहे थे। शाहजेब ने गाड़ी का एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था और दूसरे हाथ मिशेल के हाथ में मुकफ्फल था। इन्होंने पार्क में चहलकदमी की, सड़क के किनारे से गर्म पॉपकॉर्न खरीद कर एक दूसरे को खिलाए और जिंदगी के इन छोटे छोटे लम्हों को अपने दिलों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। मिशेल को लग रहा था कि इसकी झोली में दुनिया भर की खुशियां गिरी, लेकिन इसी रात जब वो वापस लौटे तो पाकिस्तान से शाहजेब के पर्सनल असिस्टेंट की कॉल आई, जिसने शाहजेब के चेहरे पर संजीदगी की एक लहर दौड़ा दी। असिस्टेंट ने बताया, ताई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बिस्तरे हालत पर शाहजेब का नाम ले रही हैं। शाहजेब ने फ़ोन बंद किया तो इसके माथे पर फिक्र की लकीरें थी। मिशेल ने इसके पास आकर इसका कंधा छुआ। क्या हुआ शाहजेब? शाहजेब ने गहरा सांस लिया। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है मिशेल, वो अस्पताल में है। मिशेल का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। ताइस ने इसके साथ जो कुछ किया वो भूलने के काबिल नहीं, लेकिन वो एक सच्ची और मुखलिस लड़की थी। इसने शाहजेब का हाथ थामा और कहा, शाहजेब वो जैसी भी हैं तुम्हारी माँ है, तुम्हें इनके पास जाना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाहजेब ने हैरत और अकीदत से मिशेल को देखा। इस लड़की का ज़र्फ इतना बड़ा है जिसने इन तमाम तकलीफ़ें भुलाकर इसकी माँ के लिए फ़ैसला किया। शाहजेब ने मिशेल को अपने सीने से लगाया और इस वक्त वापसी की टिकट्स बुक करवाने का फैसला किया। जब शाहजेब और मिशेल पाकिस्तान पहुंचे, सीधे अस्पताल के आईसीयू में रूम के बाहर आए तो वहाँ का माहौल इंतहाई उदास था। ताई सफ़ेद चादर ओढ़े मशीनों का सार में बेसुध लेटी थी। जायदाद का लालच और मिशेल के लिए नफरत सब कुछ इसी बिस्तर पर दम तोड़ रहा था। शाहजेब जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, ताई ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली। अपने इकलौते बेटे को सामने देखकर इनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। शाहजेब मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जायदाद और झूठी अना के चक्कर में तेरी खुशियाँ छीनना चाही। ताई की आवाज़ इंतहाई धीमी लड़खड़ाती हुई थी। शाहजेब ने इनका हाथ थाम लिया। इसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। ठीक इसी वक्त शाहजेब के पीछे से मिशेल भी अंदर दाखिल हुई। ताई ने जब मिशेल को देखा तो वो शर्मिंदगी से अपना रुख फेरने लगी, लेकिन मिशेल आगे बढ़ी और ताई के दूसरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। ताई अम्मा आप हमसे बड़ी हैं, हम सब कोई गिला मत रखें, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मिशेल के इन अल्फाज ने ताई के दिल पर लगा नफरत का आखिरी ताला भी तोड़ दिया। इन्होंने रोते हुए मिशेल का हाथ अपने चेहरे पर रखा। मुझे माफ़ कर दे मिशेल, मैंने तुझे तपती धूप में धक्के दिए, लेकिन तूने मेरे बेटे को भी संभाला और मुझे भी दुआ दी, तो वाकई इस घर की इज्जत है।
अस्पताल का वो कमरा जो कभी तलखियों का गवाह था, आज वहाँ रिश्तों का एक नया और पाकीज़ा आगाज़ हो रहा था। ताई की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी और कुछ ही दिनों में इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस बार वो अपने पुराने बंगले में नहीं, बल्कि शाहजेब और मिशेल के साथ इनके नए घर में आई, जहाँ इन्होंने खुद मिशेल को इस घर की चाबी सौंपी और इसे दिल से अपनी बहू तस्लीम किया। ताई अंदर कमरे में आराम कर रही थी, जबकि शाहजेब और मिशेल खुले आसमान तले खड़े चांद को देख रहे थे। शाहजेब ने मिशेल को अपने करीब किया और इसके गले में एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस पहनाया। मिशेल ने मुस्कुराकर शाहजेब की तरफ देखा। ये किस लिए? शाहजेब ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सबत की और गहरी मखमली आवाज में बोला, ये इस लड़की के लिए जो तपती धूप का सफर तय करके मेरे दिल की मलका बनी। मिशेल, तुमने मेरी माँ को बदल दिया, मेरी दुनिया को मुकम्मल कर दिया। अब यह सारे जहाँ हमेशा कायम रहेगा। मिशेल ने अपना सर शाहजेब के मजबूत सीने पर टका दिया और चांद की चांदनी इन दोनों के चेहरों पर बिखरने लगी। माफी रिश्तों की बहाली के बाद जिंदगी एक पुरसुकून और दिलकश डगर पर चल पड़ी। ताई अब मिशेल को एक पल भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो माजी के हर दुख का मदावा अपनी बेपनाह मोहब्बत से करने की कोशिश कर रही थी। एक खूबसूरत शाम जब मिशेल किचन में सबके लिए गाजर का हलवा तैयार कर रही थी, ताई लाउंज में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। शाहजेब ऑफिस से वापस आया तो इसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी चमक थी। वो सीधा किचन में गया, जहाँ मिशेल दुपट्टे को चुटिया में बांधे पूरे नमक से चम्मच चला रही थी। शाहजेब ने पीछे से आकर इसके हाथ से चम्मच लिया और इसे एक तरफ रखते हुए मिशेल को अपनी तरफ घुमाया। बिजनेस टाइकून की बेगम को अब किचन के कामों से थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए। शाहजेब ने इसके चेहरे पर आई पसीने की बूंद को अपनी उंगली से साफ करते हुए धीमे लहजे में कहा। मिशेल ने मुस्कुराकर इसे देखा। शाहजेब, ताई अम्मा बाहर बैठी हैं, कोई देख लेगा, और वैसे भी इनके लिए हलवा बना रही हूँ। शाहजेब ने शरारत से अपने अबरूज चुकाए। अम्मी अब हमारी तरफदार है मिशेल, वो कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मिशेल की आंखें तजस्सुस से चमक उठी। खुशखबरी? वो क्या? शाहजेब ने अपनी जेब से लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेटर निकाला और मिशेल के हाथ में थमा दिया। तुम्हारा बिजनेस मैनेजमेंट की आला तालीम के लिए एडमिशन हो गया है। मिशेल, तुम अब हमेशा पढ़ना चाहती थी ना, अब तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी करोगी और मुस्तकबिल में मेरे साथ मेरा बिजनेस भी संभालोगी। मिशेल ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ इस लेटर को देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शाहजेब को सीने से जा लगी। शाहजेब, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब मिलेगा। शाहजेब ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। तुमने हालात का मुकाबला बहुत खुददारी से किया है मिशेल, अब तुम्हारी उड़ान का वक्त है। ताई ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देखा तो इसका दिल भी खुशी से भर गया। इन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा और दुआएं दी। लेकिन इसी खुशी के माहौल के दौरान मिशेल को पिछले चंद दिनों से हल्की सी कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत हो रही थी, जिसे वो काम की थकन समझकर नजरअंदाज कर रही थी। मगर तकदीर ने इनके लिए एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सरप्राइज तैयार कर रखा था, जिससे इनकी दुनिया मुकम्मल होने वाली थी। अगले चंद दिन मिशेल की तबीयत मजीद नासाज रहने लगी। वो सुबह उठती तो इससे शदीद मतली और घबराहट महसूस होती। शाहजेब, जो इस मामले में हद से ज्यादा हसास था, मिशेल की हालत देखकर सख्त परेशान हो गया। वह बिजनेस की तमाम मीटिंग्स कैंसिल करके इसे शहर के सबसे बड़े लेडी डॉक्टर के पास ले गया। ताई भी इनके साथ थी और इनके चेहरे पर एक तजर्बाकार माँ वाली धीमी मुस्कुराहट थी, जो वो शाहजेब से छुपा रही थी। अस्पताल के प्राइवेट रूम में जब डॉक्टर ने मिशेल का मायना किया और कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर कमरे में दाखिल हुई तो इनके लबों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। शाहजेब ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है ना? इसे ये चक्कर और कमजोरी क्यों हो रही है? डॉक्टर ने रिपोर्ट शाहजेब के हाथ में दी और मुबारकबाद देते हुए बोले, मिस्टर शाहजेब, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यह कमज़ोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप बहुत जल्द वालिद बनने वाले हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जुमला सुनते ही शाहजेब जैसे अपनी जगह जम गया। इसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इसने हैरत और बेपनाह खुशी से मिशेल को तरफ देखा, जो शर्म से लाल हो चुकी थी और इसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ताई ने फौरन आगे बढ़कर मिशेल को गले से लगाया और पुकार उठी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे घर को रौनक बख्शी। शाहजेब ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और जैसे वो सब घर लौटे, शाहजेब मिशेल को अपने कमरे में ले गया। इसे कमरे का दरवाजा बंद किया और मिशेल के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। इसे मिशेल के दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे। इसकी आंखों में इस वक्त मोहब्बत का एक समंदर मौजूद था। मिशेल ने, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। मिशेल ने झुककर शाहजेब के बालों में अपनी उंगलियां चलाईं और धीमी रसीली आवाज में बोली, ये सब तुम्हारी मोहब्बत का असर है शाहजेब। तुमने मुझे तपती धूप से निकालकर अपनी जान का हिसार बनाया और आज इस हिसार में एक नई जिंदगी मुस्कुरा रही है। शाहजेब उठा और इसने मिशेल को बहुत नरमी और एहतियात से अपनी आगोश में लिया। इस रात घर का माहौल किसी जश्न जैसा था। हर तरफ रोशनी और खुशबू का राज था। ताई ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी।
شاہزیب اور مشل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے. آسمان پر چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا. ٹھنڈی معطر ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی. شاہزیب نے اپنا گرم کوٹ مشل کے کندھوں پر پھیلایا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں سے جکڑ لیا. اس کا ایک ہاتھ مشل کے پیٹ پر تھا جہاں ان کی محبت کی نئی نشانی پرورش پا رہی تھی. مشل نے اپنا سر پیچھے کر شاہزیب کی مضبوط شانے پر ٹکایا. دونوں کے چہروں پر ایک لازوال اور ابدی سکون تھا. تپتی گرمی، ممانی کے ظلم، تائی کی نفرت اور زمانے کی رسوائی سے شروع ہونے والا یہ سفر اب ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں وقت کا پہیہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور شاہزیب کے گھر کا ہر کونا اب آنے والے ننھے مہمان کی تیاریوں سے مہک رہا تھا.